Let me introduce someone whose journey blends leadership, service, resilience, and a deep commitment to making a difference. Mr. Zafar Masood, a big hand for him. Zafar Saab joined the board of directors at State Bank of Pakistan in 2013 and later moved to the Ministry of Finance as DG of National Savings. There he had a major digital transformation in partnership with global institutions like the Gates Foundation, FCDO, USAID, and the World Bank, and launched welfare and saving products for differently abled individuals, Shuhada families, and overseas Pakistanis. From 2018 to 2020, he became the founding CEO of InfraZamin Pakistan, a PIDG UK initiative where he helped create Pakistan's first credit enhancement company for social infrastructure financing. His leadership roles span across major national institutions. He has served on the boards of Port Qasim Authority, Quaid-e-Azam Thermal Power, Gadoon Textiles, Sindh Investment Board. Since early 2020, he has been the president and CEO of the Bank of Punjab, one of country's largest public sector banks, leading a transformation focused not just only on digital capability, but on empathy, compassion, and governance. He also led one of Pakistan's largest wholesale interest-free loan programs designed with the consent of IMF and the World Bank. Airports Authority, NIBAF, IBA Karachi, the INSEAD Alumni Association Executive Committee, the Institute of Directors UK, and Milcar Mental Health Initiative. He is also part of Prime Minister's Committee on the Homegrown Economic Revival Plan. Internationally, he was honored with Hungary's highest civil award in 2021 for supporting the restoration of a 175-year-old subcontinental artwork by Hungarian painter August Skoft. He is an MBA from IBA, is an INSEAD alum in corporate governance. He writes regularly for the media, authored out of the box, co-authored a publication on pension reforms, and was the only non-Western leader featured in Stuart Miller's Master Mentors Volume 2. But above everything else, what brings a deeper meaning to today's conversation is his remarkable personal story of hope, resilience, and renewal. As we all know, he survived Pakistan's PK-8303 plane crash on May 22, 2020, just six weeks after his appointment at Bank of Punjab. That experience reshaped his life and his leadership, inspiring his internationally released book, Seat 1C, and another book dedicated to him, The Miraculous Survivor. Much of his work since then has focused on empathy, resilience, mental well-being, making a difference, and becoming an agent of change during his bid to try and create an equitable world. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming Mr. Zafar Masood. Thank you very much. Thank you very much, Nuruddin Saab. Thank you to Saad, thank you to Bilal for organizing this long pending gathering. So, that's about the book, but the obvious question that comes to somebody's mind is why a book to begin with? In this day and age where everything is on social media, everything is digital, why a book, a paper, a hardbound book? Why is that necessary? And why this book to begin with? देखिए मेरा ये ख्याल है कि किताब जो है ना वो आपको काफ़ी अच्छा एक स्ट्रक्चर्ड वे में अपनी थॉट को डालने में हेल्प करती है। तो वो भी आप अगर रिकॉर्डिंग भी कराते तो आप स्क्रिप्ट से करवाते। दूसरा ये कि आप अपने पेज पे देख सकते हैं। तीसरा ये कि मेरा ये ख्याल है कि किताब अगर आपकी बुक शेल्फ पे रखी होती तो यू कांट मिस इट, you tend to go and pick it up and at least look at it. And if the book is titled at Seat 1C, which is a misnomer by the way in this case, because इसके अंदर जो है वो क्रैश के बारे में जिक्र बहुत कम है. It's the learnings post crash which has been captured in there. तो आप डेफिनेटली किताब उठा के जरूर देखें कि अच्छा क्या है क्या. And once you get hooked up to it, तो you might end up reading something which may help in you designing your life.
reinforcing your few ideas or maybe designing it in a different. And this is my permanent contribution in this transitory world really. मेरे ख्याल से जो किताब की शेल्फ लाइफ होती है वो बहुत लंबी होती है, और अगर किताब शेल्फ पे वैसे भी रखी हो फिजिकली भी और वहां पर मेरी तस्वीर लगी हुई हो तो मेरी शेल्फ लाइफ भी लंबी हो जाती है उस वजह से. आई मीन योर फेस ऑल द टाइम, you can't avoid it. The book is all about the 10 learnings. अच्छा वो 10 ऐसे नहीं है कि कोई वो 10 मैंने मैन्युफैक्चर की है या मैंने पैसे डिसाइड किया होता कि वो 10 होंगी. मुझे एक अखबार ने कहा कि आप ये अपनी पोस्ट क्रैश लर्निंग्स के बारे में कुछ बताइए कि क्या है वो. तो मैंने उनको जो अपनी लर्निंग्स का जिक्र किया उसमें इत्तेफाक से 10 निकली. They just happen to be 10. These are the learnings that I'll talk about when, these are the learnings right before the time when I knew that I'm going. So what were the feelings, and it was based on those learnings only. And I believe that there are very few people who have the opportunity to seeing death so closely and then come back and tell the tale. अच्छा, बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने मौत को बहुत करीब से देखा होगा, मगर द कैपेसिटी टू राइट एंड द कैपेसिटी टू टॉक अबाउट इट वो गालिबन हर एक के अंदर नहीं है. मुझ में इस वजह से भी है क्योंकि मैं जिस फैमिली से आ रहा हूँ वहाँ मतलब वो मैं पंजाबी में कहता हूँ उसको मजाक में कि इट चुक्को ते एक राइटर निकल आता है. आप एवरीबडी इन माई फैमिली, जॉन साहब, तकी साहब एंड एवरीवन. तो ऑन एन एवरेज कासिम उसको क्लेम करते हैं. कासिम खुद बहुत अकम्पलिश्ड ऑथर है बाय द वे. इनकी किताब है 2 पाकिस्तान, अभी अंग्रेजी में ट्रांसलेट हो रही है, बड़ी मुश्किल से बट हो रही है. ये तो हमारी डिबेट चल रही है अभी, जूरी इज आउट ऑन दिस. मेरा क्लेम ये है कि हमारी फैमिली में 3 जनरेशंस के अंदर तकरीबन 50 किताबें हैं इंक्लूडिंग अस. कासिम का ख्याल है कि शायद 40 है. 40 पे तो हम डन करते हैं, 40 और 50 के दरमियान इस वक्त जो है वो. तो एक मेरा ख्याल है वो डीएनए था किताब लिखने का, और एक बैक ऑफ द माइंड गालिबन ये एक ख्वाहिश भी थी कि ये लिखी जाए. दूसरा ये कि लोगों में शायद बात करने की कैपेसिटी भी नहीं होती. वो भी मेरे केस में बिकॉज ऑफ माय फादर, आई थिंक मुनव्वर सईद साहब, वो एक शायद शुरू से एक, और एक हमारी फैमिली में वैसे भी बच्चों को बहुत इनकरेज किया जाता है कि तुम लोग बोलो और अपना पॉइंट ऑफ व्यू दो. तो एक गालिबन वो भी वजह थी कि जिसकी वजह से मुझे लगता ये है कि मेरे पास एक यूनिक अपॉर्चुनिटी टू नॉट ओनली राइट अबाउट दिस बट टॉक अबाउट दिस एज वेल. एंड ये जो पूरा ये जो मैं आपको 40 टॉक्स का बता रहा हूँ, ये हर टॉक पे कोई ना कोई नई चीज जो है ना वो आती है. और एक जो थॉट मैं आपसे भी डिस्कस करूंगा वो तो एक्चुअली किताब में पेरिफेरीज में मेंशन हुई भी है, but it is not explicitly covered in the book, and I'm thinking of writing a kind of a sequel to this book of what it is all about, but that's the genesis of the whole thing. So I feel that this is incumbent upon me to write about those learnings and then talk about those learnings, because those are some things which I wish and hope that nobody will ever come across in their lives. And क्योंकि मैंने वो confront की है तो मैं ये समझता हूँ कि मेरी ड्यूटी है कि मैं आप लोगों से आके शेयर करूं और आप लोगों को वो बताऊं. मुमकिन है कि उसमें से कुछ अच्छा ही निकल जाए. मैंने जिस तरह आपसे कहा कि आई कम फ्रॉम अ स्क्वायरली मिडिल क्लास फैमिली, और वो दिमागी तौर से टोटली मिडिल क्लास, जिस तरह मैंने अभी आपसे कहा. और मैं प्रोफेशनली जिस तरह इन्होंने बताया मैंने MBA किया था, मगर इरादा कोई नहीं था. मेरा इरादा अपना काम करने का ही था, मगर मेरा नहीं ख्याल है कि मेरे अंदर कैपेसिटी है टू बी अ एंटरप्रेन्योर लाइक यू गाइस. इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग. और मैं एक और चीज़ आप लोगों से शेयर कर लूँ, मेरा करियर जो है ना वो 360 डिग्री करियर है. वो इस तरह 360 डिग्री है कि मैंने अपना करियर शुरू किया फ्रॉम अ मल्टीनेशनल बैंक. Then I set up a regional bank in Pakistan. Then I went to Africa and worked there. I worked in Dubai. I've worked in Dubai twice, once setting up this bank and then subsequently setting up my own business, Burj Capital. But उससे पहले I was the managing director for, तो एक और jurisdiction में भी काम करके देख लिया आपने. I was
merely 37 years old when I became the regional managing director for Southern Africa. 10,000 people, $3 billion balance sheet. It was a big business. और उसके बाद I left and I set up my own business called Bush Capital. जो दुबई में उसका ऑफिस था और यहाँ था. You are aware of this as well. So मैंने वो जो एक जो होता है ना चखना, वो मैंने चखा जरूर है एंटरप्रेन्योरशिप को. उसके फौरन बाद मैंने गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में काम किया. He'll bear me on this कि डिपार्टमेंट में काम करना और पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में काम करने में जमीन और आसमान का फर्क है. तो मैंने गवर्नमेंट के उसमें भी काम किया, मैं स्टेट बैंक के बोर्ड पे रहा तो मैंने रेगुलेटर के रोल में भी काम किया, और फिर मैंने पब्लिक सेक्टर अब मैं उसको भी कर रहा हूँ, और मैंने DFIs के साथ भी काम किया है इंफ्राजामिन बनाने में. करंदाज का मैं कंसल्टेंट रहा 1.5 साल. तो जो सबसे मुश्किल चीज मुझे निकल के सामने मेरी आई वो एंटरप्रेन्योरशिप थी व्हेन आई वाज डूइंग माय ओन बिजनेस. एंड आई एम टेलिंग यू इन ऑल ऑनेस्टी कि आई हैव द हाईएस्ट रिस्पेक्ट फॉर दिस ग्रुप सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी रियली. And if anybody deserves a round of applause, there's are you guys, really. And वो और भी complicated हो जाता है मामला when you are working in a country like Pakistan. मेरा तो ख्याल ये है कि आप लोग सब जहाद पे हैं. आप यकीन माने डीलिंग विद द लेबर डिपार्टमेंट टू नो ऑफेंस मेंट, आपके सारे दोस्त और कॉलीग हैं. नाउ कमिंग टू द 30-second story, I call it a 30-second story. It's actually life. It's the time between when you're alive and you know that you are going. I call it a 30-second story. कुछ लोगों के केसेस में ये 1 महीना होता है, किसी में 6 महीना होता है, किसी में 1 मिनट होता है. मेरे केस में मेरा ये ख्याल है कि वो 30 सेकंड, और उन 30 सेकंड में जो मेरी फीलिंग्स थी उससे जो लर्निंग्स निकल के आई वो ये 10 लर्निंग्स है जो मैंने इसमें लिखी. अच्छा, वो था क्या मामला? वो मामला ये था कि it was a life. It was my life which came in front of me like on a canvas, like a movie. So starting from my childhood in Lahore to then going around Pakistan and outside Pakistan, coming back to Lahore, came through in front of me, and I thought कि यार ये जिंदगी तो बड़ी अच्छी गुजर गई, and I have no regrets. अच्छा, मौत से मुझे कभी डर नहीं लगा. I've always been a very, in that sense, a बहादुर man. तो मैंने कभी ये मौत का खौफ मुझे नहीं रहा कि यार मैंने उस वक्त भी मैंने कहा कि तो अच्छा है, और दूसरा शायद इसलिए भी नहीं रहा कि आई एम सिंगल. तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने बचाया हुआ है. उस साइड से भी कोई परेशानी नहीं थी. तो मैंने अल्लाह ताला से कहा भाई आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू. आगे से आवाज आई, नो इट विल बी ऑलराइट. व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? अच्छा, वो मेरी बड़ी दोस्ती है उनसे, मैं उनसे ऐसी सी बातें कर लेता हूँ जो मैं अपनी वालदा से नहीं कर सकता. अल्लाह ताला से, रसूल से बात हो जाती है, वो कभी बुरा नहीं मानते. तो मैंने कहा, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? इज एग्जैक्टली लाइक दिस. मैंने कहा, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? इट्स राइट इन फ्रंट ऑफ माय आईज. It's crashing. It's inevitable. It can't be avoided. It's crashing. You'll be all right. And that's exactly what happened. But जो learning वहां पर थी वो ये थी कि 2 चीजें बड़ी जरूरी. एक तो ये कि as a reflection, when I recall that time period of 30 seconds, the critical aspect is that I didn't have any regrets, and I was ready to go. And I told my God, I'm coming, right? So there were no regrets as such. But then the other angle is that I realized, यार मैं तो अपने कोर्ट में खुद खड़ा हुआ था. I was standing in my own witness box, answerable to myself as judge, to decide how I led my life. Now this is a very unique proposition and thought. I never thought that there will be a time come in my life where I will be evaluating myself of how I led my life. अब ये तो मैं आप लोगों को आके बता रहा हूँ ना, आज जब मैं बच गया वहां से. हर इंसान की जिंदगी में वो 30 seconds आने, and I call it 30 seconds life before death. Have we ever realized that we never worry about the life before death? We always worry about life after death. अरे भाई, लाइफ आफ्टर डेथ में तो आप गफूरुर रहीम के सामने खड़े होंगे. वो तो आपकी छोटी मोटी चीजों को वैसे ही माफ कर देगा.
लेकिन लाइफ बिफोर डेथ में आप बहुत छोटे इंसान के सामने खड़े होंगे जो आप खुद हैं। तो लिहाजा अपने आप को इतना बड़ा आदमी बनाने की कोशिश कीजिए कि आप दूसरे लोगों की भी कुछ चीजें माफ कर दें और उस दिन अपने आप को भी माफ करने की पोजीशन में हो, वरना शायद आप किसी ट्रिवियल चीज के ऊपर अपने आप को रिग्रेट कर रहे होंगे जो परहैप्स इज नॉट नेसेसरी इन लाइफ। तो दीज आर द टू लर्निंग्स जो जिस्ट है इन 10-30 लर्निंग्स की, वो 30 सेकेंड लाइफ बिफोर डेथ की जो मैं बात करता हूं, ये वो है। इसके ऊपर मैं अब किताब में इसका जिक्र हुआ है पेरिफ्रीज में, बट इट्स नॉट एज explicitly mentioned it's supposed to be, and I'm thinking of writing a sequel on this. जो उर्दू वाला है उसमें मैं एक चैप्टर ऐड करा रहा हूं about this whole thing. Well, as I said, there are 10 learnings, but my favorite learning is rituals. तो मैंने पहला चैप्टर जो था वो रिचुअल्स को रखा था, मगर बाद में मेरी जो एडिटर है उन्होंने उसको किताब को चेंज करके और उन्होंने उसका सीक्वेंस चेंज कर दिया था, वो 7वें नंबर पे चला गया, पहले वो एरोगेंस को ले आए। But I think the decision was just right. अच्छा, मेरा जो पूरा थीसिस है अबाउट रिचुअल्स, और ये फिर बिलाल ने मुझे कहा कि आपने रिचुअल्स पे जरूर बात करनी है, अब मेरा फेवरेट चैप्टर भी था, मुझे मौका भी चाहिए इस पर बात करने का। The fact is that I think rituals are good thing. They alleviate, anxiety and stress, but and irrespective of how absurd and unreasonable they may sound or they may be, but it is the rigidity of rituals which is a killer and should not be an acceptable situation. So the rigidity of rituals is something which I am very against, but rituals overall is a good idea. Now let me just read from the book with a structured way में thought आपके सामने आ जाएगी कि किस तरह रिचुअल्स जो हैं उसमें जो रिजिडिटी ऑफ रिचुअल्स है दैट कुड बी अ किलर रियली, एंड किलर इन द ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड। ये किताब है जो मेरी रिचुअल्स का चैप्टर है, पेज 148 पे। रिजिड एडहेरेंस टू रिचुअल्स कैन नॉट कम एट द कॉस्ट ऑफ एवरीथिंग एल्स। आई एम नॉट सजेस्टिंग दैट पीपल गिव अप ऑन रिलीजियस ड्यूटीज, but how would the lives of passengers of flight 8303 be different if the ground crew at Karachi airport had taken turns to pray on that Friday instead of abandoning their post in droves? वो जुमातुल विदा था और 27 रमजान था। This rigidity that surrounds ritual worship in Pakistan did not come in a vacuum. I have witnessed Pakistan change from a relatively open-minded society to one that is increasingly becoming regressive and dictatorial. And complex socio-economic and political triggers have underpinned it all. I would like to recount the downward spiral Pakistan has found itself in, with a deteriorating security situation, rising intolerance, and investors scared off by political volatility, because all of this has led to a more conservative society. I would even go as far as to say that rituals cannot be all and end all of your life. If your entire focus is on performing prescribed rituals, or worse, if you derive your value and sense of ethical superiority from your ability to perform rituals correctly, then you are being distracted from your purpose on earth. Rituals cannot consume your life or dominate your struggle towards self-improvement. Good actions are the key to good life. एक और जो लर्निंग है, जो दूसरी मेरी बड़ी इंपॉर्टेंट लर्निंग है, उसके बारे में नूरुद्दीन साहब ने और बिलाल ने कहा कि उसको भी जरूर टच कीजिएगा, एंड दैट इज अबाउट द विल पावर। अच्छा, विल पावर कुड बी, मैंने उसमें काफी फैसेट्स ऑफ विल पावर कवर किए, मगर जो एक फैसेट है वो मैं आपसे जरूर डिस्कस करना चाहूंगा, दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट इज रिलेटेड टू द थेरेपी, द मेंटल थेरेपी दैट आई वेंट थ्रू। So after the crash, I went through mental therapy for 4 months. Despite knowing well that being the CEO of a bank, you could be declared as mentally unsound,
जो मुझे वैसे ही लोग डिक्लेयर कर देते हैं अनसाउंड, तो आई डोंट केयर अबाउट इट इन एनी केस। बट एक रिस्क का चांस होता है कि आप, मेरी इस पे थ्योरी बिल्कुल डिफरेंट है। मेरी थ्योरी इसके ऊपर ये है दैट if you are in a position of power and influence, you all are, then it's always a good idea to get yourself mentally checked and then get that out of your system that you have any possible gaps in there. देखिए, जिस environment में हम रह रहे हैं, जिस किस्म की climate की situation में हम रह रहे हैं, कराची शहर में आप रह रहे हैं, अगर आप लुटे नहीं है तो आप बहुत लकी आदमी है रियली। लेकिन इट्स a traumatic thing when you go through all of this. We by default, probably every one of us is the kind of stress that we are operating in. सरकारी डिपार्टमेंट से डील कर रहे हैं आप, ये तो हर वक्त बहुत ज्यादा डील करते हैं सरकारी डिपार्टमेंट के साथ, तो वो ये ये टैक्सिंग चीजें हैं, दे टेक टोल ऑन योर हेल्थ एंड योर मेंटल हेल्थ। इसलिए मेरी तो बड़ी इस पे कंसिडर्ड ओपिनियन ये है कि हम सब जो है ना वो किसी हद तक वेरियस शेड्स ऑफ दिस थिंग, कुछ मेंटल शायद हमें भी जरूरत सबको ट्रीटमेंट की है। तो एक तो मैं आई वेंट थ्रू दैट 4 months after my crash, and when my psychotherapist told me that you're okay now, then I stopped taking it. But after the book launch, I realized that I needed it again, and I needed it because thinking and talking about those things and ideas again and again resurrect certain thoughts which are very taxing on your mind. And I thought it's important that I go through the psychotherapy again. So I again went through the psychotherapy, and I do off and on go to the psychotherapist. The point here is that you should not shy away from getting all of this. So the point here is that we should not shy away, take it head on and address it. Mental health is so important that even if there is a physical deficit, the mental strength would help you in getting over that as well. I still have to go through one big operation in my knee, but it is the mental health, and mental health में बहुत बड़ा जो एस्पेक्ट है ना, वो आप सब लोगों के लिए ज्यादा भी जरूरी है। वो आपके इकोसिस्टम से जो आपको सपोर्ट मिलती है ना, वो बहुत जरूरी है। तो आपकी फैमिली इज द मेन पार्ट ऑफ दैट इकोसिस्टम। अगर आपको मेरी कुछ सैनिटी नजर आ रही है या आपको कुछ मेरी मैं थोड़ा सा बेहतर नजर आ रहा हूं, तो उसकी वजह ये लोग हैं। बिकॉज ये जो मेरी फैमिली है, ये एक सबसे बड़ी मेरे लिए स्ट्रेंथ है, और ये ही इस तरह आप लोगों ने अपने लोगों के लिए स्ट्रेंथ बनना है, बिकॉज यू आर इन अ पोजिशन टू बी दैट स्ट्रेंथ फॉर द अदर्स। हर एक के पास ये प्रिविलेज भी नहीं होता। मैं अभी 6 महीने पहले तक अप्रैल में मैं स्टिक लेके चलता था। अच्छा, वो स्टिक एक लेगेसी थी, वो आ रही थी फ्रॉम from my hospital bed to the wheelchair to the then on the clutches to then finally on the stick. अच्छा, वो मुझसे छूटती रही थी स्टिक, और मैं लंदन गया तो ये इसी से पहले ईद की छुट्टियों में, तो वो मैं टैक्सी में भूल गया अपनी स्टिक। वो टैक्सी वाला पाकिस्तानी भाई था हमारा, वो एसेक्स में रहता था, एसेक्स लाइक 1.5 hour आउट ऑफ लंदन। वो मैं भूल भाल गया, वो मेरे पास ड्रैगर था, मैं उसकी सपोर्ट से ऊपर चला गया। सुबह उठा, आप लंदन में आपको पता है, स्पेशली अगर आप 2 दिन के लिए हो तो मुसीबत पड़ी होती है, यू आर रशिंग हियर एंड देयर, एंड वो मैं सुबह देखा तो स्टिक नहीं है। आप क्या करें यार, मुसीबत पड़ गई। खैर, वो मैंने टैक्सी में जाते हुए फोन किया उसको, अब मैं बगैर स्टिक के ऑपरेट कर रहा हूँ। एंड उसके बाद वो मैं फोन पे बात करते करते उसको खैर ढूंढ ढांड लिया। उसने कहा जी मैं तो रात को 10 बजे आऊंगा, वो मैं नहीं चाहता आप एक्स्ट्रा पैसे दे। मैंने कहा भाई मैं इसको क्या एक्सप्लेन करूं। अच्छा, ये स्टिक वगैरह बड़ी ट्रिकी चीज होती है, वॉकिंग एड जो है ना, यू कांट कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी देयर, बिकॉज अगर वो टूट जाए, आप क्योंकि आप सारा वजन देके चलते हैं ना, यू कैन फॉल डाउन एंड यू कैन एक्चुअली हर्ट योरसेल्फ इवन बैड। तो उसमें क्वालिटी बड़ी जरूरी है। तो 500-600 पाउंड की मिलती है वो लंदन में। तो मैंने कहा यार ये 5, मुझे कहने लगा मैं 75 पाउंड लूंगा। मैंने कहा भाई 70 पाउंड लूंगा। मैंने कहा भाई तू 100 ले ले। मैंने दिल में सोचा भाई 600 तू मेरे बचा रहा है, तुझे पता ही नहीं। नहीं सर वो आपके 100 कह रहे हैं, मैंने आपसे 50 ले लूंगा। मैंने कहा यार तू 50 ले ले, मुझे ना दे। To cut the long story short, I spent the whole day without the stick,
and I felt so liberated that I'm not dependent on anybody. And it was such a great feeling, and I realized that it was all in my head, really. Nothing more, nothing less. It's just all in my head. My physical deficit would also, I could get over it if my mental strength is there. So that's how the mental strength is important. And especially for entrepreneurs like you, mental health become even more handy than people like us who operate in a more structured system. एक गाना मेरा बड़ा फेवरेट है. मेरे दोनों बैंड्स जो है ना, मेरे जो फेवरेट बैंड्स हैं वो आयरिश बैंड्स हैं. सो द कोर्स इनफैक्ट उसका इसमें गाना भी है, बॉर्डर्ड हेवन इसमें है. एंड देन देर इज अनदर बैंड कॉल्ड U2, and U2 is again one of my favorite bands. Kazim actually introduced me to U2. So U2 का एक गाना है Get Out of Your Own Way. प्लीज इसको जरूर सुनिएगा, ये आप लोगों के लिए बड़ा जरूरी है मेंटल हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में, और जो आप लोग काम कर रहे हैं और जो जहाद आप लोग कर रहे हैं रियली, उसमें ये बहुत रेलेवेंट है. गेट आउट ऑफ योर ओन वे. आई कुड सिंग इट टू यू ऑल नाइट. If I could, I'd make it all right. So I can talk about it many times. I'll try and help you out in doing it, but nothing stopping you except what's inside. I can help you, but it's your fight, fight back. Don't take it lying down. You got to bite back. The face of liberty is starting to crack like freedom. The slaves are looking for someone to lead them. The master is looking for someone to need him. The promised land is there for those who need it most. The Lincoln's ghost said, get out of your own way. Amazing talk. It was more, it was deeper than I thought it would be, but दाई बातें जिस तरह से intimate setting है उस हिसाब से माशाल्लाह. आपने एक चैप्टर लिखा था न्यूज़ का, हमेशा देर कर देता हूँ, थोड़ा सा बताएं. एक चीज जो मैंने रियलाइज की है इन लाइफ वो ये थी कि बिकॉज वो 30 सेकंड एक फिगरेटिव चीज है, तो मैं 30 सेकंड ही बार बार कोट कर रहा हूँ. 30 सेकंड्स पहले मुझे नहीं पता था कि व्हाट इज स्टोर्ड इन माय लाइफ, व्हाट इज द फेट इज टेकिंग मी टू. सो और हम सबको ये बात नहीं पता. मैं आपको लाइफ एक एग्जांपल देता हूँ. एक साहब है जो एक एक्स बैंकर हैं, बड़े मशहूर आदमी हैं, इस्लामाबाद में रहते हैं. वो अपने गार्डन में निकले, वो एक सीढ़ी थी खाली, वो फोन पे थे और वो उन्होंने सीढ़ी मिस की और वो स्लिप किया और सर जो था वो सीढ़ी पे लगा. एंड देन ही बिकेम अ टोटल वेजिटेबल. ही इज फाइन नाउ, नॉट फुली रिकवर्ड, बट ही ऑलमोस्ट डाइड. तो इतनी इफेमरल नेचर है लाइफ की. एक सेंस ऑफ अर्जेंसी आ गया. Whatever you have to owe to someone, do it now without any delay. अच्छा, वो लोग ये समझते हैं ये बैंकर है तो ये पैसों की बात कर रहे होंगे. मैं पैसों की बात बिल्कुल नहीं कर रहा. I have argued in this book that more than anything else, it is actually the emotional dues which are more important in life than anything else. Wait मत करें, because life may not allow you to do that, because you never know whether you have the opportunity. And उस वक्त आपको regret ना हो in those 30 seconds when you're confronted with it. So that's about the dues chapter. वो भी बताइए जरा कि वो जो मतलब स्टोरी टेलिंग के हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि जो हुआ था प्लेन में, अगर वो जितना भी याद है वो भी बताइए. खालिद शेखी मेरा बड़ा दोस्त भी था, बैचमेट था, वो दूसरी साइड में, तो वो भी हम जरा सुनना चाहते हैं कि क्या हुआ, क्या कैसे, हाउ डिड यू, मतलब वो तो अल्लाह की रात में बचाया, लेकिन ऐसे में फिजिकली कैसे हुआ? अच्छा, वो हुआ ये था कि वो जब जहाज पहले आया लैंड करने के लिए, तो वो बड़ी स्टीप उसकी लैंडिंग थी. वो नॉर्मली जहाज जब आता है तो वो डिसेंड करता है इन अ स्लो फैशन, एंड देन फ्रॉम 3,500 feet then they start
to prepare for landing. This plane started preparing for landing from 8,000 or 9,000 feet. एंड वो एक टिपिकल मार्क होता है ऑन द स्ट्रिप जहां आपने लैंड करना होता है, बिकॉज इफ यू मिस दैट स्ट्रिप देन यू कैन एक्चुअली ओवरशूट द टारमैक. और आपको शायद याद हो, आप लोगों को शायद याद हो कि इंडिया में एक इस तरह का क्रैश हुआ था कि जहाज जो था वो पहाड़ी से नीचे गिर गया था. दिस हैपेंड 2020 almost a month and a few days later from this crash. So exactly the similar thing happened then. They missed the mark, and it is a normal thing by the way. ये कोई ऐसी abnormality नहीं है कि आप मिस कर गए मार्क को, वो आप कर जाते हैं मिस एट टाइम्स, आप थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड होता है. पायलट भी तो इंसान ही है ना, तो उससे गलती तो हो सकती है, मगर गलती को ठीक करना जो है ना, उसको रियलाइज करके ठीक करना वो बड़ा जरूरी है. इसीलिए पहला चैप्टर जो है वो एरोगेंस के ऊपर है. अच्छा, वो जब लैंडिंग का मामला आया तो उसने उसको डिसीजन लेना होता है आपको कि यू हैव टू गो बैक एंड टेक द राउंड सो दैट यू कम बैक इनटू द जोन ऑफ 3,500 फीट का लैंडिंग का. वो आपने 500 फीट पहले लेना होता है. He refused to take that decision. He took that decision 50 feet before the landing. Ground control ने उसको 2-3 दफा कहा कि you are too steep and you won't be able to, you'll miss the strip. He insisted that no, I'll manage, and hence the first chapter on arrogance there. And then 50 feet before the landing, he realized that he has missed that strip, that mark, and he has to now take a round and come back. अच्छा, वो उसने जब लिया वहां से डिसीजन कि उसने करना है, तो जो इंजन थे उसके उन्होंने स्किड किया ऑन द टारमैक, एंड दैट बिकेम द रीजन सब्सिक्वेंटली फॉर द फेलियर ऑफ दोस इंजन्स एज वेल. इंटरेस्टिंगली इनफ, कराची की सिचुएशन जो है ना वो थोड़ी डिफरेंट है इन कंपैरिजन टू द अदर एयरपोर्ट्स, बिकॉज कराची का जो एयरपोर्ट है उसके बिल्कुल अक्रॉस द रोड जो है वो फैसल बेस है, और फैसल बेस जो है वहां वो जनरली यूज नहीं होता, तो वहां आप अगर इस तरह का कोई इमरजेंसी है तो आप लैंड कर सकते हैं. एंड दैट्स वेयर आई आर्ग्यू, जो मैंने पढ़ के भी आपको बताया, कि अगर कोई सीनियर आदमी होता उस वक्त एयर ट्रैफिक कंट्रोल में, तो वो उनको ये बता सकता था कि देखें आपके इंजन जो है वो पॉसिबिलिटी है फेल होने की, और आपके लिए बेहतर है कि आप बजाय इसके कि पूरा राउंड लेके पोर्ट कासिम से वापस आए, आप जो है वो क्रैश लैंडिंग अनाउंस करके आप लैंड कर लीजिए एट फैसल बेस. बट वो नहीं हुआ, बिकॉज आई एम सॉरी बट द सीनियर पीपल वर टू बिजी प्रेइंग टू द गॉड एंड नॉट बॉदर्ड अबाउट सेविंग द लाइफ ऑफ 100 पीपल. खैर वो बेचारा गया, वो घूम के वापस आया. वो जब वापस आया तो राइट शॉर्ट ऑफ द प्लेन, इसको मैं कहता हूं ecosystem failure. It's not just the failure of PIA, it's not just the failure, it's the collective failure of all of us, even today, for accepting it as a normal thing and just be palatable about it कि हाँ ठीक है यार हो जाता है, अब चलो आगे चले. नहीं होता, नहीं मानना चाहिए, क्रिटिसाइज करना चाहिए, लड़ना चाहिए, बट वी डोंट डू इट. वो वापस आता है और वो आके उसके इंजन बिल्कुल बिफोर द लैंडिंग वो फेल हो जाते हैं. मेरा सेंस ये है कि पायलट ने बड़ी कोशिश ये की थी कि किस तरह वो एयरपोर्ट के अहाते में क्रैश लैंडिंग कर दे, क्योंकि वहां सपोर्ट सिस्टम ज्यादा होता तो शायद कुछ जिंदगियां बच जाती. बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं कर पाया, बिकॉज दिस इज अगेन माई सेंस, क्योंकि जहाज नीचे से टकराया है टेल से. ज्यादातर अगर आप स्टोरीज पढ़ेंगे क्रैश की तो वो आगे से गिरते हैं और जो लोग सामने आगे बैठे होते हैं वो नहीं बचते. इन दिस केस ये नीचे से टकराया है जहाज, और नीचे से गालिबन इसलिए टकराया है कि हमारे प्यारे मॉडल कॉलोनी के अंदर एक बिल्डिंग, मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि इलीगली खड़ी हुई थी. दैट्स माय इकोसिस्टम फेलियर, और वो जहाज नीचे से उसको टकराया है जो अलाउड गालिबन नहीं थी. और अगर वो नहीं होती बिल्डिंग तो शायद वो स्किड करके एयरपोर्ट के हाथे में लैंड कर लेता. बस वो फिर द प्लेन क्रैश्ड ऑन हैबिटाट एंड
not only 97 people on the plane died, 1% on the ground lost their lives. Also 2 लोग बच गए थे, एक मैं और एक जुबैर। जुबैर यहीं कराची में रहते हैं, इंजीनियर हैं, बड़े जबरदस्त, बहुत अच्छा लड़का है वो। आप बचे कैसे? आपको प्लेन के अंदर कैसे पता लगा? नहीं, प्लेन के अंदर तो मुझे जो मैंने बताया वही था, लेकिन प्लेन में मैं फेंट कर गया था बिफोर द क्रैश। आई नो व्हाट यू टॉकिंग अबाउट। मैं इस पे आता हूँ। मैं तो फेंट कर गया था। उसके बाद जितनी मैंने किताब में लिखा हुआ है या इंटरव्यूज में बात की हुई, वो सब आई विटनेस अकाउंट्स हैं जिनको मैंने गैदर किया है फ्रॉम डिफरेंट पीपल, जिसकी बेसिस पे वो लिखा गया है कि कैसे बचे। जो दूसरा लड़का है जुबैर, वो बिल्कुल कॉन्शियस था, वो क्रैश के बाद बचा है। मैं बजाहिर क्रैश से पहले गिर गया था मेरी सीट नीचे, और दैट रिजल्टेड इन माय सर्वाइवल। बट मुझे कुछ याद नहीं है, आई हैड नो रिकलेक्शन ऑफ इट ऑन माय ओन। जुबैर जो था वो बिल्कुल कॉन्शियस था, और जुबैर ने छलांग लगाई अपनी सीट से पीछे, वो इमरजेंसी गेट था, वो उससे चलता हुआ गया पर के ऊपर से। वो पर एक घर को उड़ा चुका था, आधे घर को। उसने वहां से छलांग उस घर के अंदर लगाई, वहां से निकल के बाहर आया, आके बैठ गया ऑन द फुटपाथ। तो उसने लोगों से कहा मुझे पानी पिला दें, और उन्होंने कहा तुम कहाँ से आ गए, घर से आ रहे हो, तुम घर में पानी पी लेते हो। उन्होंने कहा नहीं जी मैं जहाज से गिरा हूं। उसने बोर्डिंग पास दिखाया, उन्होंने कहा तुम झूठ बोल रहे हो। थोड़ी देर के बाद जब लोगों को यकीन आ गया तो कहने लगा उसको छोड़ो अपनी तस्वीरें। उसने कहा जी मुझे हॉस्पिटल ले जाए। उन्होंने हॉस्पिटल बाद में लेके जाएगा, मैं सेल्फी तो ले ले तुम्हारे साथ। तो देन वो जुबैर जो है माशाल्लाह, उसकी तो रियल जेम्स बॉन्ड टाइप स्टोरी है। ही रियली मेड एन एफर्ट टू सर्वाइव, एंड ही इज अ ग्रेट गाय। आई एम इन टच विद हिम। वो बेचारा रहता है इन टच मुझसे, बल्कि इस टॉक के लिए भी ही इज अवेयर दैट आई एम कमिंग। जुबैर से याद आया, मैं आखिर में पढ़ा था वो आपकी किताब में कि यू मेड एन एफर्ट टू फेस योर फियर्स। आप कोई महीने सवा महीने के बाद दोबारा उसी फ्लाइट पे कराची लाहौर गए, 1C में बैठे, उसी सीट पे PIA में। How do you feel about that and how other people could not have done that? अच्छा, एक दो वजूहत। एक तो ये कि ऑब्वियसली मेरी क्योंकि वो क्रंच टाइप की रिकलेक्शन नहीं है ना, तो इसलिए मेरी थोड़ी सी मेंटल सैनिटी जो है ना, मैं बार बार बड़ा केयरफुली थोड़ी कहता हूँ। मेरे दोस्तों को ख्याल है कि मैं तकरीबन पूरा पागल हूँ, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा जानबूझ के कहता हूँ। तो वो सैनिटी बरकरार रही, तो उस हिसाब से मेरी वो रिकलेक्शन नहीं है कि जो मैं कहता कि जी मैंने कोई बड़ा कारनामा किया, वो रिकलेक्शन मेरी नहीं थी। दूसरा ये था कि मैंने ये सोचा कि यार 4 महीने जब मैं बेड पे था कि भाई ये तो सब कुछ जो होना था वो तो अल्लाह ताला ने किया, तो यार मतलब हम तुसी भी कुछ कर लो। तो देन आई सेड कि यार ठीक है, व्हाट आई डू इज दैट आई विल देन गेट द मोस्ट फियर इन माय हेड आउट ऑफ माय हेड। वो क्या चीज है? वो ये है कि मैं अब शायद दोबारा फ्लाई करने से घबराता हूं, तो मैं उसी सीट पे, उसी जहाज पे, उसी एयरलाइन पे बैठ के जाऊंगा और कन्फ्रंट करूंगा अपने फियर्स को, बिकॉज मैं इस जिंदगी को गुजारना नहीं चाहता कि जिसमें इस किस्म की आपके ऊपर प्रेशर्स हो, या आप डेफिसिट के साथ जिंदा रहे कि नहीं यार मैं तो ये नहीं कर सकता और मैं तो वो नहीं कर सकता। वो जो PIA के MD थे, चेयरमैन थे, वो गिल्ट में बेचारे, यार एक तो खैर BOP वाज द लार्जेस्ट लेंडर टू PIA, तो था ही रिलेशनशिप उनके साथ, लेकिन वो गिल्ट भी था उनको एक गिल्ट भी था कि यार मतलब वो ये क्रैश हुआ है। तो वो हर 15 दिन बाद बेचारे आ जाते थे कराची, और वो मेरे पास आते थे। वो जब वो 15 दिन बाद आया, मैंने डिसीजन ले लिया था, तो मुझे कहने लगे, मैंने उनसे कहा कि डॉक्टर चेयरमैन साहब मैंने डिसीजन लिया कि मैं PIA पे वापस जाऊंगा। वो तो तकरीबन कुर्सी से नीचे गिर गया। उन्होंने कहा यार ये क्या कह रहा है भाई? कहने लगा हमारी तो हिम्मत नहीं हो रही थी आपसे कहने की कि आप कभी फ्लाई भी करेंगे और वो भी PIA से फ्लाई करेंगे। नहीं, मैंने कहा मैं करूंगा। तो कहने लगा आप माइंड तो नहीं करेंगे? अगर हाइंडसाइड मुझसे गलती हो गई, लेकिन उन्होंने कहा कि हम माइंड तो नहीं करेंगे, हम कवरेज कर ले। मैंने कहा जी आप कर लीजिए। तो उन्होंने पूरी कवरेज की, घर से लेके कवर करके गए वो बाहर तक, और वो उसके बाद वो अगले दिन जो है वो बहुत बड़ी हेडलाइन बनी, वो अखबारों में आया। उस पर वो बेचारे जुबैर को जाकर उन्होंने पूछ लिया कि जी जुबैर आप क्यों नहीं फ्लाई करते? तो जुबैर ने आगे से जवाब दिया कि
अगर इस तरह का प्रोटोकॉल मुझे मिले तो मैं भी फ्लाई कर लूंगा। वो बेचारे बच्चे को किसी ने कह दिया होगा, वो 23 साल का बच्चा, उसको कह दिया होगा, वो भी उसने भी बेचारे ने आगे स्टेटमेंट दे दी। मैंने वो स्टेटमेंट पढ़ी, मैंने कहा यार मैंने अच्छा प्रोटोकॉल क्या है यार, मुझे तो प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं, मैं चेयरमैन हूँ लार्जेस्ट कंपनी इन पाकिस्तान, आई एम द CEO ऑफ द सेकंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन, मेरे तो 3 प्रोटोकॉल ऑफिसर हैं, मुझे थोड़ी कोई प्रोटोकॉल की जरूरत है, मुझे PIA की प्रोटोकॉल की जरूरत है। बट पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस थिंग्स ना, कि वो मुझे किसी पोस्ट की जरूरत नहीं है। अच्छा खैर, अब वो मैंने उनको फोन किया MD साहब को, मैंने कहा जी इसको फोन करें, उससे कहे मैं तुझे पूरा प्रोटोकॉल दूंगा, तेरे साथ जाऊंगा, जो आपने मुझे कहा था। कहने लगा मैं अभी करता हूँ। फिर उसको फोन किया, उसने आगे से कहा, उसने कहा सर बात ये है, मैं तो फ्लाई नहीं कर सकता, मेरे तो इतना ज्यादा फियर है कि आई कांट फ्लाई। तो देन आई वाज वेरी सिंपैथेटिक एंड दिस थिंग। खैर उसके बाद उसका मेरे पास फोन आया नवंबर 26 को, मुझे क्या लगा सर वो आप 7 दिसंबर को कहाँ हैं? अभी 2024। मैंने कहा मैं नहीं हूं यहाँ, मैं चाइना जा रहा हूँ। कहने लगा नहीं आपने तो कराची आना था। मैंने कहा क्यों? कहने लगा मेरी शादी हो रही है। मैंने कहा मेरे भाई अगर तूने खुदकुशी करनी थी तो इतनी मेहनत करके उस दिन क्यों बचा तू यार? तो उसी दिन फारिग हो जाता। उस बेचारे को कुछ समझ नहीं आया फोन पे कि क्या डिस्कशन, उसने कहा सर आप ना आए, बड़ी देर बाद। And next thing I know, जब मैंने उसको इनवाइट किया about the launch of the book in Lahore, तो he had gone for Umrah. The good part, ये तो मजाक की बात है, but अच्छी बात ये कि उसको companionship जो उसकी बीवी की मिली, I think his wife took him through the travel. वो बेचारा सियालकोट में काम कर रहा था और वो वहां से आया करता था गाड़ी पे कराची से, because he could not fly. But अब वो माशाल्लाह से he's flying. I've flown, so I've learned how to fly. So one of the things when I did the theory was the fact that मसला जो है ना पायलट का होता है, if you follow the SOPs and everything is fine. 99. तो उसके बाद yes, और I'm sure आपने तो बहुत ज़्यादा research की होगी इसके बाद. But now after doing all of that, I am very fearful of flying private, at least within Pakistan, क्योंकि you always know that there will be बड़ा अच्छा some सवाल, SOP बहुत अच्छा problems. सवाल। और मैं जब भी मैं 12 घंटे की US की फ्लाइट लेती हूँ, सही। जब मैं लोकल फ्लाइट पे बैठता हूँ मेरे दिमाग में ये सही। हर वक्त आता है। सही। तो does it ever come to your मैं mind क्या हो रहा है अंदर, पायलट क्या कर रहा है? मैं आपसे एक पर्सनल सवाल पूछूं, आप कितने मजहबी आदमी हैं? मतलब I am God। रोजे रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं? नहीं? अच्छा ये मेरे साथ के हैं, ठीक है, स्पिरिचुअली ठीक है, सही है, स्पिरिचुअली तगड़े आदमी, ठीक है, जिसने ये काम नहीं कर रहे होते ना रिचुअल में, कहते हैं मैं स्पिरिचुअली बड़ा तगड़ा। अच्छा देखिए, मैं इस पे आपको ये बताऊं, अगर आपका अपने खुदा पे ईमान पक्का है ना, तो इट डजंट मैटर कि आप की जिंदगी कैसे जानी है। साथ जब जानी होगी ना, तो फिर आप प्राइवेट एयरलाइन क्या, आप अपने पर्सनल जेट में भी जा रहे होंगे तो आप चले जाएंगे। लिहाजा इसकी फिक्र ना करें, सिर्फ इस बात की फिक्र करें कि जब आप जा रहे होंगे तो उससे पहले जो 30 सेकंड है लाइफ बिफोर डेथ, उस वक्त आपकी क्या फीलिंग होगी। All your actions lead towards that situation. There shouldn't be any regrets. बाकी तो सब आपको क्या पता, मुमकिन है वो, मैं ये काजिम के जो बैठे हुए इनके ताया, वो इंटरनेशनल प्लेन उनका क्रैश हुआ था, ही पास्ट अवे और इंटरनेशनल क्रैश, पैनम था, ही पास्ट अवे। इंटरनेशनली भी तो आपका जहाज क्रैश हो सकता है, तो प्रोबेबिलिटी तो हर एक चीज की बड़ी कम है। यहाँ गालिबन शायद 10 साल के बाद होता है, वहां शायद 20-25 साल के बाद होता है, हो सकता है। लिहाजा ये कोई अश्योरेंस नहीं है कि आप उससे अवॉइड करेंगे। अब मुझे लोग कहते हैं जी आप ये पे चले जाते हैं, आपको पता नहीं पे। तो ऑन अ सीरियस नोट, आई थिंक मैं इस पे बिलीव करता हूँ कि अगर आपका अपने खुदा पे फेथ पक्का है तो ठीक है यार, जब आनी होगी तो देखी जाएगी। बस उसकी तैयारी रखिए कि जब आने का टाइम आएगा ना, तो उस वक्त कोई रिग्रेट्स ना हो और आप अपने आप को माफ कर सकें लाइफ बिफोर डेथ। I think people who go through an experience such as this, where you face death and you come back from there,
you become a little bit, you have a sense of invincibility. Um, how have you felt post this incident, in both personally and in business? Have you become more of a risk taker? Have you become more risk averse? I mean, we know personally. aspect है जो नहीं कह रहे Personally, you've obviously become very risk averse, staying single and all. But business में business में आप how you? नहीं, मैं पहले भी रिस्क अवर्स नहीं था, हमेशा से रिस्क टेकर था. Has that changed? That has actually fearless. अब किसी चीज का डर नहीं है. अब वो एक लाइबिलिटी बन गया उल्टा. बिकॉज किसी चीज का डर नहीं है तो हर वक्त ये ख्याल रहता है कि यार मैं इंस्टिंक्टिवली कोई बात ऐसी ना कह दूं कि जो मैं तो बियर कर सकूं, बट पीपल अराउंड मी एंड डिपेंडेंट ऑन मी मे नॉट बी एबल टू बियर इट. He exactly knows what I'm talking about. At times I get away with a lot of stuff on my own, but this guy has to face the brunt because that customer comes and complains to him, for example. मुझसे तो fearless है, ठीक है ले जाओ, उठा के ले जाओ, मैं नहीं कर रहा था. But this is a very trivial example I am quoting, but ये fearlessness जो है ना ये बहुत ज्यादा बढ़ गई है because अब जिंदगी में बड़ी clarity है. अच्छा ये भी बात बिल्कुल ठीक है, मुझे इसको बिल्कुल गलत बात होगी अगर मैं कहूं कि ये नहीं है. नो पोजीशन नो मनी मैटर्स, बिकॉज जिस वक्त मेरा क्रैश हुआ था जो मुझे लोग निकाल के लेके गए थे उनको नहीं पता था किसको निकाल, उनको थोड़ी पता है कि बैंक का प्रेसिडेंट है कि मुझे नौकरी दे देगा या कोई लोन दे देगा. लेकिन वो उन्होंने गुडनेस में निकाला. इसका मतलब ये है कि जब दोबारा मेरी जिंदगी आएगी किसी ने बचानी होगी ना तो इसलिए नहीं बचाएगा कि मेरे पास पैसा है या मेरे पास पोजीशन है, वो सिर्फ अपनी गुडनेस में बचाएगा या मेरी उससे रिलेशनशिप में बचाएगा. सो देयरफॉर किस चीज का आप व्हाट आर यू फेयरिंग फॉर? देखी जाएगी यार जो होगा. नथिंग इज मोर इंपॉर्टेंट इन लाइफ देन द रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल एंड दैट फियरलेसनेस इज अनदर. एक अर्जेंसी जो पहले उन्होंने बात की और दूसरा फियरलेसनेस, ये दो बड़े ऑब्वियस किस्म के चेंजेस इन माय लाइफ आए हैं. पहले भी मुझे वैसे डर वर नहीं लगता था, लेकिन अब तो बिल्कुल ही डर खत्म हो गया किसी भी चीज का. नौकरी का भी डर नहीं है. सुबह कह दे मैं रिजाइन करके चला जाऊंगा, आई डोंट केयर. लिटरली ये सिचुएशन है विच इज नॉट अ वेरी हेल्दी सिचुएशन, आई मस्ट से, बिकॉज अ स्लाइट फियर इज गुड फॉर योर सैनिटी एज वेल. बट दीज आर द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ द क्रैश जो आपने सवाल पूछा. उसकी वजह से वो रिस्क भी आप जरूरत से ज्यादा लेने लगते हैं. I joined this bank 5 years back. So in the 5 years, मैं छोटी सी बात करूँगा. The essence of transformation of Bank of Punjab as a government bank, still a government bank, but a very well known and a formidable organization is fearlessness. I think his nature, his personality as a fearless person has been inculcated down the line. And I think that is the only essence of transformation. आप कहते हैं ना ऐसा कि आपका डिजिटल है ये है वो है, मेरे ख्याल ये जो चीज़ थी ना that has been 180-degree change. That's it. थैंक यू. थैंक यू. वो सवाल While you were writing this book, जी. what is the truth or your journey that you did not want to confront, but while writing it made you acknowledge? And if you are acknowledged, how do you feel now day or night? अच्छा ये भी एक मामला जो है ना वो ये था कि जब मैं किताब मैंने लिखने का सोचा तो ऑब्वियसली मेरे पास 2-3 रास्ते थे डॉक्टर साहब. एक रास्ता ये था कि मैं इसको सेंसेशनलाइज करके एक नॉवेल टाइप बना देता और अपने आप को एक पीर की तरह प्रेजेंट करता जो कि आधे लोगों को वैसे यकीन है कि मैं पीर हूँ. एक तो चॉइस ये थी कि मैं वो रूट ले लेता. एक चॉइस ये थी कि मैं लर्निंग्स की बात करता एंड आई वांटेड टू बी अ कंस्ट्रक्टिव मैन, सो दैट्स व्हाई आई टॉक्ड अबाउट द लर्निंग. और जो तीसरी इंपॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि मुझे कितना सच बोलना है उसके अंदर. तो मैंने कहा यार जब तक कि आप ऑथेंटिसिटी नहीं आएगी आपकी राइटिंग में, इफ यू डू नॉट टेल द ट्रूथ, एंड सबसे मुश्किल काम डॉक्टर साहब जिंदगी के अंदर अपने बारे में ट्रूथ को मानना, पहले देखना और फिर मानना है. बिकॉज हम तो फ्लॉलेस हैं और अगर आप पी रहे हैं तो आप तो बिल्कुल ही फ्लॉलेस हैं और आपको यकीन दिला लिया जा रहा है कि आप फ्लॉलेस हैं.
तो इट वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग, इंट्रोस्पेक्शन जिसको कहते हैं, वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू अंडरस्टैंड, लुक इन टू योर सेल्फ एंड सी मेरी ये कमियां हैं, मेरी ये खामियां हैं, एंड आई हैव टू डील विद देम। आपने मेरी किताब पढ़ी है डॉक्टर साहब? अच्छा, तो आप जब पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि वो मेरे ख्याल से वो काफी रियलिटी पे मबनी है और मैंने कहीं कोई चीज नहीं छुपाई है। जी नहीं, मैं बिल्कुल कुछ छुपाने की बात ही नहीं है। जो मेरी, चलो वेरी गुड, ये तो नूरुद्दीन भाई ने भी इसको कर दिया। वो आप किताब भी देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि मैंने उसको बिल्कुल ऑथेंटिक रख के जो है वो है, जो अच्छा है वो अच्छा। अच्छा, फिर मेरे पास एक और चॉइस भी, अगर मैं इसमें आमना का नाम नहीं लिखता तो क्या होता? कुछ नहीं होता। मैंने उसको अपफ्रंट रिकग्नाइज किया। मैं हर डिबेट में आके रिकग्नाइज करता हूं उसको, बिकॉज जो उसका क्रेडिट है वो उसका क्रेडिट है, थॉट्स मेरे हैं वो मेरा क्रेडिट है, वो कोई नहीं ले सकता। तो जो आपका क्रेडिट है वही ले। इस किताब में मैंने एक और चीज कोट की है बाय द वे, जब वो हुआ कोविड का मामला हुआ तो वहां पर जो है वो हमारे जो फ्रंट लाइन स्टाफ था वो ऑब्वियसली एक्सपोज था बहुत ज्यादा, एंड दिस वाज प्री कोविड टाइम इन मार्च 2020। तो हमने वहां स्पेशल बोनसेस दिए थे टू द फ्रंट लाइन स्टाफ। जो हमने उनको बोनसेस दिए फ्रंट लाइन स्टाफ को, तो वो द ओनली बैंक इन द इंडस्ट्री एंड ओनली ऑर्गेनाइजेशन इट टर्न्ड आउट टू बी। अच्छा, जब वो मेरा क्रैश हुआ तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जी ये तो ये इन्होंने क्योंकि अपने एम्प्लॉयज को बोनस दिया था इसलिए बच गए। और लोगों ने अपने प्रेसिडेंट को कहना शुरू कर दिया, सर वो आप सुने, आप सर वो ट्रैवल कर रहे थे इस्लामाबाद, उन्होंने कहा सर वो बस रिमाइंड कर रहा था तो जफर ने सर बोनस दिया था वो बच गया। तो यहां तक लोगों ने उसको एक्सप्लॉइट किया। अच्छा, मुझे भी लोगों ने क्रेडिट देना शुरू कर दिया उसका कि जी ये तो इन्होंने दिया था। मैंने पहले इंटरव्यू में और इस किताब में लिखा हुआ है वो मेरा क्रेडिट नहीं है। वो मुझसे पहले जो बोर्ड था उसने अप्रूव किया था, और जो सीईओ थे उस वक्त, एक्टिंग सीईओ जो हमारे ऑपरेशंस हेड है एजाज कुरैशी साहब, उन्होंने उसको अप्रूव किया था। मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन था कि मैं उसको रोक सकता था। अब इतना जालिम आदमी भी नहीं हूं कि मैं रोक सकूं उसको, तो मैंने रोका नहीं था। ये मेरा क्रेडिट जरूर है, लेकिन मैं क्यों उस चीज का क्रेडिट ले लूं जो मेरी, ये भी हमारा बड़ा प्रॉब्लम है। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने अब आपकी पॉलिसी जो है, लाइफ इंश्योरेंस तो मैं होप कर रहा हूँ कि ईओ किसी टॉक के बाद कोई लाइफ इंश्योरेंस वाला पकड़ के कहेगा यार कर लेते हैं, किसी ने नहीं किया। दो बातें इसके अंदर हुई मजेदार एक्चुअली। एक तो ये कि पीआईए के सीईओ को मैंने फोन करके कहा, मैंने कहा सर आप एक काम करें, आप मेरे और जुबैर के लिए अनाउंस कर दें कि फ्री लाइफ जो है ना वो ट्रैवल इंटरनेशनल और लोकल हम आपको देने को तैयार है। मैं आपको आज लिख के दे रहा हूं कि मैं वो अवेल नहीं करूंगा, लेकिन ये आपके लिए बहुत अच्छा है और शायद जुबैर को एक मोटिवेशन मिल जाए टू ट्रैवल थ्रू पीआईए अगर आप ये कर लेते हैं। फॉर सम रीजन दे डिडंट डू इट, बट अगर वो कर लेते तो कोई हर्ज नहीं था, अच्छी मार्केटिंग हो जाती है। अच्छी लाइफ इंश्योरेंस जो मेरी बैंक ऑफ पंजाब की है वो बड़ी तगड़ी है और वो और तगड़ी हो गई होगी अब तक। वो जब उस वक्त भी मेरा क्रैश हो रहा था तो उस वक्त मेरे जहन में जो चीज आई वो ये कि मैंने वो एक्टिवेट नहीं कराई हुई थी अपनी लाइफ इंश्योरेंस। तो वो मैंने कहा था वो 22 मई था, मैंने कहा था यार मैं 8 जून को आगे करवा लूंगा। तो मैंने कहा अरे यार एक ही रिग्रेट रह गया जिंदगी, क्या बाकी तो कोई रिग्रेट, एक ही रिग्रेट रह गया कि यार वो इंश्योरेंस पॉलिसी एक्टिवेट नहीं कराई थी। वो मेरी अम्मी को, माय मदर गेट्स रियली अपसेट ऑन दिस, वो भी क्योंकि बैठी हुई नहीं तो मैंने उनके एब्सेंशिया में बात कर दी कि जी वो मैं उसको एक्टिवेट करा लेता तो उनको कुछ पैसे मिल जाते। अच्छा, फिर इंसान भी ना खुद ही कॉन्सोलेशन भी ढूंढ लेता है। अच्छा, मुसलमान तो वैसी कॉन्सोलेशन ढूंढ लेते हैं ना हर चीज में। तो मैंने कहा यार वो तो कोई मसला नहीं है, उनको तो पैसों की जरूरत ही नहीं है, माशाल्लाह शी इज वेल टू डू। ये जो सिबलिंग्स है मेरी सब माशाल्लाह दे आर ऑल ऑन देयर ओन, सो उनको पैसों की जरूरत नहीं, बट चलो ठीक है कोई बात ही नहीं होता। तो इंश्योरेंस पॉलिसी इन अ वे इज वेल कवर्ड फ्रॉम देयर सो फार। सो लेसन ये कि टाइम पे पैसे दे दिया करें पॉलिसी बहुत जरूरी है ये। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं मजे की, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पे मेरे एक प्रिंसिपल इख्तलाफ है। वो तो पैसे आपके बाद मिलने बाकी लोगों को, तो आप तो चले गए,
तो फायदा क्या उसका? और मेरे जैसे सिंगल आदमी जो, उसको तो कोई फायदा नहीं है। तो पहले आप मेरे लिए वाइफ ढूंढे, उसके बाद फिर ये छोटे से पॉलिसी का फायदा। जी जनाब। I know. I said it on purpose. It was a rhetoric. I lost a second cousin, husband, and 3 kids in this crash. It was one of the worst times. And I remember going to the graveyard 5 times, 6 times, because they gave us. Are you related to Zain? Yes, his wife. His wife. You know Zain's father, Zakaria Saab, and my father were best of friends. And we grew up together in Lahore. Zain, मेरा जो इससे छोटा भाई है, वो और Zain same age के थे. Zain was like my younger brother. मुझे नहीं पता वो जहाज पे by the way. And I remember going to the graveyard an extra time because they gave us the wrong body to bury. It was further traumatic for the family. It was a very difficult time for us. And if certain people had made better decisions, maybe that wouldn't have happened. And besides this, on lighter note, जिसमें movies में देखते हैं sir कि when the pilot has time to announce कि brace yourself, crash होने वाले हैं, did that happen on the plane or did you guys not know what was happening? They gave out no warning whatsoever. Zero. There was absolutely no warning. और अगर वार्निंग वो दे देती तो शायद एक आध जिंदगी और बच जाती, बिकॉज लोग अपने आप को तैयार कर लेते, प्रिपेयर कर लेते, बाय डिफॉल्ट प्रिपेयर हो जाता। बहुत मतलब गलत बॉडी दे दी, ये सब चीजें जो ना बाद में सिर्फ याद ही रह जाती है। बॉडी तो सब यार, वो रियलिटी तो ये है कि वो बच्चा चला गया आपका, और अब वो जो पीछे लेगेसी छोड़ गए ना आपके साथ एज अ लव्ड वन, दैट इज नीडेड टू बी चेरिश्ड। मेरा तो फिलॉसफी जिंदगी की ये है कि जाना तो सबको है, अपनी जिंदगी को एंजॉय करके जाइए, और ऐसी जिंदगी जाइए कि जब आपको पता हो कि आप जा रहे हैं तो उस वक्त भी आप एंजॉय करके जाइए कि ठीक है यार, ये तो जाना तो सबको है, सूनर और लेटर, वन वे और दी अदर, दिस वे और दैट वे, स्केपिंग नहीं हो सकती। मगर जिंदगी ऐसे गुजार लीजिए कि इसको जितना आप एंजॉय कर सकते हैं, जितना एंजॉय भी वो मतलब ये कि कितना आप दूसरों की जिंदगी में इम्पैक्ट ला सकते हैं और कितना आप अपने आप को काम रख सकते हैं और हैप्पी रख सकते हैं। और उसका जो की है वो इसी में है, अब एंटीथीसिस दे रहा हूँ उसका, वो की इसमें है कि आप शादी न कीजिएगा। आपकी तो शादी नहीं होगी, अरे यार उमर, चलो कोई बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं, अल्लाह ताला खैर करेगा। एक बात आपने लिखी थी कि एजेंट ऑफ चेंज के बारे में थोड़ा सा बताएं। आपने डरते डरते बात की कि अगर बड़ी तमीज बात थी कि अगर इफ आई एम एबल टू मेक इवन अ little bit of difference in your understanding of the world, then I would have done my job. कि आप कहेंगे उसके बारे में तो नूरुद्दीन भाई, बात ये है कि जो जिस तरह मैंने आपसे कहा कि you know there are very few people who seen the death so closely and then come back and tell the tale. और इस तरह मैं वो 30 सेकंड वाली स्टोरी की बात करता हूँ, वो मुझे बहुत यूनिक इस सेंस में लगता है क्योंकि वो हर एक को कन्फ्रंट तो करना है। मैंने कोशिश ये की है कि मैं जो उस वक्त की मेरी जिंदगी की प्रायोरिटीज हैं वो बताऊं कि उस 30 सेकंड में क्या थी, ताकि जो लोग अपनी जिंदगी आज गुजार रहे हैं वो उस हिसाब से गुजारें कि जब उनके ऊपर वो 30 सेकंड का वक्त आएगा तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे उसको। एंड दैट इज व्हाट आई हैव ट्राइड टू अचीव इन दिस बुक। एंड वो दो 10 लर्निंग्स, फिर वो एंड में मैंने जो 10 लर्निंग की जिस्ट है जो आपको नजर आती है नो रिग्रेट सिंड्रोम में और सर्वाइवर्स गिल्ट में, वो मैंने उसमें कैप्चर करने की कोशिश की है, उसको प्रेजेंट किया है कि किस तरह ये दो चीजें जो है इनको आप पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर यूज करते हैं तो यू कैन मेक अ डिफरेंस इन अदर पीपल्स लाइफ एंड कीप योरसेल्फ हैप्पी एज वेल। सर्वाइवल गिल्ट का थोड़ा सा बताएं, क्योंकि ये एक ऐसा कश्मकशी में होता है। मैं अगर आप इजाजत दें तो किताब से बहुत ब्रीफली पढ़ के सुना देता हूँ। इनफैक्ट दिस गिल्ट, सर्वाइवर्स गिल्ट,
In fact, this guilt has been my primary motivation for creating a more equitable world. So perhaps it is time to subvert the negative association we have with survivor's guilt. If all of us individually, and this is to me, this is another favorite piece in this book. If all of us individually see the privileges, wealth और positions, ये आप लोगों के लिए खास तौर से है. If all of us individually see the privileges, wealth or positions we have as proof of our survival in an uneven, unjust world, and वो भी कराची तो super uneven and super unjust world, then we should all have some degree of guilt that propels us to make a change in life. So this is what survivor's guilt is for me. Survivor's guilt is actually वो ये था कि हर एक के लिए देखिए उनके लव्ड वंस इंपॉर्टेंट होते हैं, और जब वो आपको देखेंगे तो शायद वो अल्लाह ताला से शिकायत करें कि भाई इसको तो तूने दे दिया मिरेकल, मेरे लव्ड वन को क्यों नहीं दिया, उसको क्यों नहीं बचाया, जो उमर गालिबन आपके जहन में भी आया हो. Now I don't want that feeling to be triggered in anybody's heart or mind. This is a very unfair thing on my part. If I अच्छा अब मैं क्या करूं, ये तो रियलिटी है, मेरा कोई कंट्रोल नहीं है इसके ऊपर. Then I have the option of either becoming, जिसको कहते हैं ना, हुजरे में चला जाऊं और बिल्कुल सब कुछ बंद कर लूं, किससे बात ना करूं, या मैं इसको डायरेक्शन में लेके जाऊं एक पॉजिटिव. तो मैंने ये सोचा यार कि अगर आप सब लोग अपने आप को देखें ना, तो आप लोगों को सबको सर्वाइवर्स गिल्ट होना चाहिए, बिकॉज यू आर अ प्रिविलेज्ड इन वन वे और द अदर. आई एम द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ दैट प्रिविलेज बिकॉज मेरी जिंदगी बच गई, बट अदर्स आर प्रिविलेज्ड वन वे और द अदर, एंड दैट्स व्हाट आई आर्ग्यूड कि आप लोग सब बहुत प्रिविलेज्ड लोग हैं, एंड यू मस्ट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द अदर पीपल बिकॉज यू आर द प्रिविलेज्ड वंस एंड द चोजन वन बाय द गॉड. That's how I took it in that stride, really. The reality is that this is actually the individual which makes institution. This the individual which collectively makes the community. It's the individual which collectively makes the nation and the humanity overall. All we need to do is we have the control on ourselves. आपका कंट्रोल आपके बच्चों पे भी नहीं है. जिस डे एंड एज और वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, जिस किस्म का एक्सपोजर उनका है, आपका अपने ऊपर तो कंट्रोल है ना. आप सिर्फ इस चीज पे काम कीजिए कि आप अपने आप को ठीक कर लीजिए, कि आप ये रिजॉल्व कर ले कि मैंने जो काम करना है वो ठीक करना है. अगर आप वो काम ठीक कर लेंगे अपने आप को, तो हर इंडिविजुअल अगर अपने आप को वो ठीक कर लेगा, तो कलेक्टिवली यू विल हैव अ बेटर सोसाइटी, a better place to live. And this is what I argued in this, कि इंडिविजुअली तो आपका अपने आप पे कंट्रोल है, आप अपने आप को ठीक कर लीजिए, इन्हीं सी चीजों को देख के ठीक कर लीजिए. गालिबन यहाँ से कुछ चीज ऐसी आ जाए जो आपको हेल्प कर ले ठीक करने में अपने आप. Usually, I mean, there's obviously a lot of people who've gone through these similar situation across the world, right? Is there, I mean, a support group of sorts where everybody gets together and talks about these things, etc.? Or has there been, facing death and coming back from it, has there been a support group that you've been a part of? Not that I am aware of, but जो मेरा जो इनिशियल वो था साइकोथेरेपिस्ट, वो एक्सपर्ट था in air crashes and this kind of experiences. तो I guess वो जो एयर क्रैश पे सफरर्स हैं, जिस तरह उमर है, वो उसका एक्सपर्ट था. And I was a survivor there too, so he had some kind of expertise there. That was the only support system that I could talk about. But at the end of the day, और आपसे ज़्यादा बेहतर ही कोई नहीं जानता, आपकी फैमिली सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम होती है. उससे बड़ा सपोर्ट सिस्टम कोई नहीं है. कोई फॉर्मल सपोर्ट सिस्टम नहीं है, कोई साइकोथेरेपिस्ट नहीं है. आपकी फैमिली सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम होती है. जिस तरह आपकी फैमिली माशाल्लाह जुड़ी हुई और अल्लाह करे यूं ही जुड़ी रहे, वो सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम होता है. जफर मसूद फाउंडेशन के बारे में थोड़ा बता दें. जी, वो जफर मसूद फाउंडेशन का जी आइडिया ये है कि वो मैं चाहता ये हूँ कि जो लोगों की अवेयरनेस है उसको बढ़ाया जाए अबाउट
their privileges as passengers and उनके राइट्स और प्रिविलेजेस क्या हैं। अच्छा, ये अवेयरनेस में बड़ा, देखिए होता क्या है, मेरा पूरा थीसिस है इसके ऊपर, जो तीसरी किताब मेरी आएगी, तीसरी तो नहीं चौथी आएगी वो, जिसके अंदर मैं चार्टर ऑफ सोसाइटी के नाम से मेरा आर्टिकल भी है, जिसमें मैंने ये आर्ग्यू किया है कि सिर्फ रिफॉर्म्स उस वक्त आते हैं जब सोसाइटी वो डिमांड करती है और सोसाइटी पैलेटेबल होती है टू एक्सेप्ट दोज डिफिकल्ट डिसीजंस को एब्जॉर्ब करने के लिए। सो हमें डिमांड करना है एज इंडिविजुअल कि आप जब एयरपोर्ट पे जाएं तो उससे पूछे कि मेरे भाई ये फर्स्ट एड का किधर है सिस्टम, आग बुझाने का सिस्टम किधर लगाया हुआ है आपने, बट हमें पता होगा तो वो पूछेंगे ना। तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं अवेयरनेस क्रिएट करवाऊं अबाउट द राइट्स ऑफ द पैसेंजर्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ द पैसेंजर। एंड देन द अदर ऑब्जेक्टिव इज कि जो लॉज बने हुए हैं उनकी इंप्लीमेंटेशन करवाई जाए, और कुछ लॉज ऐसे हैं जो नहीं बने हुए उनके बनाने की जरूरत है, उस पर काम किया जाए। तो ये दो ऑब्जेक्टिव है। अनफॉर्चुनेटली डिफॉल्ट हियर, बिकॉज मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा। मैंने सीईओ अपॉइंट करने की कोशिश की थी, मुझे कोई सीईओ नहीं मिला, मगर मेरी कोशिश ये है कि एट सम पॉइंट टाइम उसको रिवाइव करूं, उसको लेके आगे चलूं। दिस इज द लार्जर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस। बाय द वे, अभी लॉन्च मैंने किया नहीं, पैसे पहले जमा हो गए उसके अंदर। कुछ मुझे पीआई ने दे दिए थे, मैंने उसमें डाल दिए, कुछ मेरे दोस्तों ने दे दिए, कुछ हमारे कॉमन बहुत सारे दोस्त हैं यहीं कराची के, उन्होंने ऑफर किया हुआ है, मगर मैंने अभी तक वो लिए नहीं है पैसे, क्योंकि मेरे पास अभी कुछ है ही नहीं उसको लेके जाने के लिए। तो दिस इज व्हाट द ऑब्जेक्टिव इज ऑल अबाउट एज फार एज द फाउंडेशन इज कंसर्न्ड। एक तो मैं आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट ईओ फॉर ये जो पूरा लर्निंग चेयर का कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जिस तरह वो जॉन साहब कहते हैं ना, और ये मकसद है मेरी हद तक, जो लर्निंग चेयर्स हैं उनका ये मकसद है, जिन्हें हम कह नहीं सकते, जिन्हें हम सुन नहीं सकते, जिन्हें हम कह नहीं सकते, जिन्हें हम सुन नहीं सकते, वही बातें हैं कहने की, वही बातें हैं सुनने की। यही मकसद है लर्निंग चेयर का। आखिरी बात आपसे जरूर इस पे ये कर लूं कि ये जो आप लोग जो आप लोग काम कर रहे हैं, और जिस तरह आप लोग ये पूरी कमराडरी के साथ चल रहे हैं और एक दूसरे से सीख रहे हैं और इसको आगे चल रहे हैं, दिस इज द ओनली वे दैट आवर सोसाइटी कैन ग्रो एंड मूव ऑन एंड डू बेटर। एंटरप्रेन्योरशिप के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ही जरूरी एक शेर है, ये जिंदगी साहिब उलझेगी नहीं तो सुलझेगी कैसे, बिखरेगी नहीं तो निखरेगी कैसे। ऑल द बेस्ट टू योर एंटरप्रेन्योरशिप।